Hello dear students, welcome to the digital platform of Nalanda Vidyalaya. Today in this session, we are going to start a very new chapter of our 5th standard English grammar with the chapter number 27 with the title Subject Verb Agreement. Dear students, I hope you all are fit, fine and healthy and remain healthy. Till now, we have completed up to chapter number 26. Okay. Yes, we have also skipped chapter number 19 and 20. So, after chapter number 27, chapter number 19 and 20 will be uploaded. Okay. So, don't worry about it. But till now, we have completed up to chapter number 26. What was the previous chapter is all about? That subject and predicate. It is an all new topic for us, that what is the called subject and what is called a predicate. So let's have some quick revision about the previous chapter. It is also we can say the link between that chapter number 26 and this one. Okay, I told you earlier also. So this chapter is also linked with that chapter. In grammar, all the chapters are linked with each other, but here we are talking about the topics. So what is the subject and what is the predicate? So in a sentence, the noun part is called the subject one. Okay, subject portion or subject section, and where is the verb part plus other words which are called objects. So verb part plus object part, they are called predicate. So in a English sentence, the sentence mainly divided in two sections. Okay, I am not telling you that two sections, subject part and predicate part. So that's all about that subject and predicate of about chapter number 26. That just we have to identify which is the subject section and which is the predicate section. Okay. Now in this sentence, means in this chapter, the sentences are also of the English one obviously, but here we have to use the perfect form of the verbs, plus we have to check the grammar errors. Now the chapter number 27 is all about the common grammar errors. क्या बात कर रहा हूँ? तो ये है कि इस चैप्टर में हमें ज़्यादा जितना हमने कंप्लीट कर लिया है, जो सारे टेंसेस, ओके, बेसिकली जो 6 टेंसेस जो हमारे थे 6 to 8 जो आने वाले थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. उनके हिसाब से अब हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट SVA, जो मैंने आपको पहले भी जब टेंसेस के चैप्टर्स चल रहे थे तब भी मैं आपको समझा रहा था कि व्हाट इज SVA, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एंड ऑल्सो SVO ऑल्सो भी आता है, SVO पैटर्न, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न, वो सेंटेंस के लिए होती है. तो कौन से सब्जेक्ट में कौन से वर्ब और उनके साथ कौन से हम कहेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं, दैट इज द एग्रीमेंट. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज द मेन थिंग फॉर अवर, वी कैन से, टू मेक द सेंटेंस, वी कैन से विदाउट एनी एरर्स ऑफ ग्रामर. ग्रामर की कोई एरर्स के बिना अगर हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है तो दैट सेंटेंस मस्ट एग्री विद दैट सब्जेक्ट एंड वर्ब. सो हियर वी हैव फ्यू टेबल्स. जो टेबल्स हैं वो हम कहेंगे कि इसलिए है क्योंकि हमें वहाँ याद रखना है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल नाउन्स आपको सबको पता है. सो वो सब हमें याद करने के लिए हमें टेबल भी याद करना पड़ेगा. ओके, प्लीज रिमेंबर, आई एम टेलिंग यू सेकंड टाइम दैट वी हैव टू रिमेंबर द टेबल्स. ओके, ओवर हियर देयर इज वन टेबल एंड अनदर टेबल, बट बोथ आर वेरी वेरी इजी, एंड आई हैव taught these tables earlier in the chapters of like grammars, verbs. Okay, so don't worry about it. जो है वो मेन 3 चीज़ें हैं कि जो सब्जेक्ट होता है अगर सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब जाता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब जाता है. दैट इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स मेन की फीचर. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी थी, दैट सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक द सिंगुलर वर्ब्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक्स प्लूरल वर्ब्स. दैट्स नथिंग. ओके, वेरी वेरी इजी. सो लेट्स first have some information of what is subject verb agreement. So let's start the unit. Yes, subject verb agreement. First of all, let's see what is it. In a sentence, the verb and the subject should agree. In a sentence, the verb and the subject should agree. All the sentences of English must have a subject and verb. Okay, that we know up to now. So both the subjects and verb will
और शुड हैव एग्री विथ ईच अदर, एक दूसरे से वो एग्री होने चाहिए, उनके हम कहेंगे कि रिस्पेक्टिव नंबर्स एंड हम कहेंगे कि क्वांटिटीज के ऊपर। सिंगुलर सब्जेक्ट्स एग्री विथ सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स एग्री विथ प्लूरल वर्ब्स। ये सबसे की फीचर है हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। सबसे पहली जो हम कहते हैं वो है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स एग्री विथ सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स एग्री विथ प्लूरल वर्ब्स। You think that sir we are getting confusion? Okay, no problem, we will have that kind of examples also. Singular subjects like he, she, it and you for the second person first, singular subjects plus verbs, वर्ब के पीछे जो एस ई एस जो हम ऐड करते हैं वो किसके लिए, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर में भी थर्ड पर्सन सिंगुलर। प्लीज रिमेंबर एस ई एस तब हम ऐड करते हैं वर्ब के पीछे जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। ओके, आई हैव रिपीटेड दिस वन फॉर ओवर 10 टाइम्स, बट प्लीज रिमेंबर दैट ऑल इज टॉकिंग अबाउट दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो ना तभी हम एस ई एस लगाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के पीछे। ओके, वन कंडीशन, ऑन वन कंडीशन, इफ द टेंस इज ऑफ दैट सब्जेक्ट इज सेंटेंस इज ऑफ दैट वन simple present tense, then and then we are going to add ses after the verb if the subject is third person singular. They are he, she and it. These three are the third person singular subjects. Then for all plural subjects we will take the plural verbs. So I, you, we, they, plural subjects. Okay, so for that I is not that kind of plural, but this is the yes first person singular one, but here you as a second person singular, we as a first person singular plural, and here they as a third person plural of that subjects. So we will take just verb, we will not add any kind of ses at the end of the verb, because with I, you, we and they there should be no ses form, okay, should be applied for that sentence. That is called V4 form, जिसे V4 या V5 भी हम कहते हैं। There is a note that I is singular but it is an exception as it agrees with am or was. हाँ, I एक ऐसा है जिसके पीछे हम जो to be के जो फॉर्म लगाते हैं am या is, उसमें से हम am लगाते हैं for I के लिए, और is हम लगाते हैं सारे he, she और it के लिए। ओके, वो हमारी बात हो रही है यस सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। नाउ यू है वो एक ऐसा एक्सेप्शन है कि वो यू एज अ सेकंड पर्सन अगर सिंगुलर हैं तब भी उसके साथ आर ही हम यूज करेंगे। ओके, आर, यू आर, दैट वी हैव सीन इन दैट टेबल। ओके, दिस इज द सिंपल इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दैट एवरी सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। पॉइंट नंबर 1, यस। नाउ व्हाट इज अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दैट की थिंग्स आर हियर। Singular subjects take singular verbs, whereas plural subjects take plural verbs. Please remember, the whole thing about this chapter is that singular subjects take singular verbs, plural subjects take plural verbs. This is all about our this subject verb agreement, that what we have to learn, what we have to remember, okay, of this topic. Now, yes, now let's go back to our main content part of the textbook one. Now here we have few tables. Now these tables are very important, okay, that we have to learn both the tables perfectly, and this table will help you in future also. ये टेबल जो है हमें वो फ्यूचर में भी यूज होंगे, क्योंकि ग्रामर ऐसा पार्ट है कि ग्रामर के कोई भी टॉपिक अगर आप लर्न करते हैं, अगर आप समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, इफ़ यू लर्न दैट एनी टॉपिक ऑफ द ग्रामर, ओके, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर फ्यूचर टाइम। आपके फ्यूचर के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल बन जाता है, क्योंकि ग्रामर आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। यस, ग्रामर इज़ अ लाइफ लॉन्ग ओके सब्जेक्ट विथ यू। वो कभी आपसे नहीं कहेंगे कि ग्रामर यस ओवर हियर। ग्रामर हर जगह यूज होता है, एवरीवेयर, ओके, हर जगह हर कहीं भी ग्रामर यूज होता है। सो either you're in a 5th standard, then you will go in 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, or in college, anything, anywhere. Yes, the grammar is used everywhere. So this all the topics, this all the simple terms that we for us is very important. Talking about right now subject verb agreement. Now let's read the 2 sentences, okay, over here. The man is driving a bus. The boys are playing in the park. Now there is a difference between the first sentence and second sentence. अब ये है कि yes,
Let me make it very little bit bigger. The man is here singular subject. Please remember third person singular. And the boys, यहाँ पे s लगा है मतलब कि प्लूरल फॉर्म है, थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म. सो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज आता है, इज एम इज के साथ इज आता है, मतलब एम आता है आई के साथ. और प्लूरल के लिए, सारे प्लूरल्स के लिए अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट, अब इज इसलिए आया क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है. ये ड्राइविंग अ बस, ये हम बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं. ओके, प्लीज रिमेंबर दैट हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस. सबसे पहला जो हमारा है वो हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस. तो सबसे पहले आपको सेंटेंस रीड करना है. उसका पहला जो सबसे पहले आपको जो पकड़ना है वो है उसका वर्ब फॉर्म. वर्ब फॉर्म के साथ अगर प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट पोर्शन में अगर कहीं पे कोई पास्ट की बात हो रही है, ओके, कुछ पास्ट की, तो वो मान लेगा वो पास्ट टेंस है. अगर प्रेजेंट की बात हो रही है मतलब कि वो प्रेजेंट टेंस है. ओके, यही सबसे बड़ी की है कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम एक टेंस को सेंटेंस से. सेकंड सेंटेंस इज ऑल अबाउट द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क. अगेन इट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड हियर बॉयज आर द प्लूरल सब्जेक्ट, बॉयज. ओके, तो उसके लिए हम आर यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस का आर. अब इज है वो प्रेजेंट टेंस में इज हो जाता है, जबकि वही पास्ट में बन जाता है वॉज. इज बिकम वॉज. आर इन द प्रेजेंट टेंस ऑफ प्लूरल फॉर्म विल कन्वर्ट इनटू वेयर. Okay, R will convert into where in the plural form of the past one. These are all the to be's form. To be के जो हमारे फॉर्म है वो ये सब em is are है. Now the explanation of both the sentences. In the first sentence we use is with the noun man because it is a singular noun. Yes. In the second sentence we use are with the noun boys because it is a plural noun. Yes. So we use am with the pronoun I and are with the pronouns you. We use am with the pronoun I के साथ हम am ही यूज करते हैं. I is, I are. ओके, I were नहीं यूज होता, I am और I was. I am प्रेजेंट के लिए, I was पास्ट के लिए, I will फ्यूचर के लिए. We have learned this everything in the previous chapters of our टेंसिस. सारे टेंसिस को चैप्टर थे उसमें हमें पता है कि कौन से प्रोनाउन में कौन सा टू बी का फॉर्म यूज होता है. सो वन मोर टाइम, आई विद द प्रेजेंट टेंस टू बी प्रेजेंट फॉर्म इज एम, आई विद द पास्ट टू बी फॉर्म इज वॉज एंड आई फ्यूचर टू बी फॉर्म इज विल. आई शैल और आई विल दोनों यूज होता है, आई शैल बी, आई विल बी. यस, आर विद द प्रोनाउंस यू, दे एंड वी. अब जो आर है वो यूज होता है यू, दे और वी. तो सारे जो हम प्लूरल फॉर्म्स कहते हैं ना, सारे प्लूरल फॉर्म्स, यू में से फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दोनों, यू के दोनों फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में आर. सो यू आर, दे आर एंड वी आर. यू आर एज अ सिंगुलर, यू आर एज अ प्लूरल, दे आर प्लूरल एंड वी आर प्लूरल. बट आई एम विद द सिंगुलर. बट दिस आर am and are for present tense. Please remember for the present tense, and for past tense I was, and for are were, were. You were, you were, they were, we were. Okay, that is for past tense. Please remember. Now few sentences are over here with examples. I am unwell today. You are reading a book. They are decorating the hall. They are decorating the hall. So here in all these three sentences are of present tense. Okay, so you are reading a book, this is a present perfect continuous tense. That's why you are decorating the hall is also present continuous tense, and this is a present simple present tense. So in a present tense we use am or is for the singular subjects, for singular nouns, and we use are for the plural nouns, or we can say plural subjects. That's it for this first table also. Now looking at that table, it is already divided into singular and plural nouns, so it is very well. I is little bit we can say exception, because I is always used with am for the singular one. So I am, then he, she, it, these three third person singular subjects, okay, they will always go with is. He is, she is, it is. Now for plural subjects, like you in the singular and plural for both, please remember you as the singular subject and you as the plural subject for both. They and we, these three will take are in the plural form. To be का जो हमारा
फॉर्म लगाना है वो है आर। किसके लिए? सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, प्लूरल प्रोनाउंस के लिए, यू, दे, वी। सो हियर आई एम हैविंग सम फ्रूट्स, आई एम क्लीनिंग माई रूम, examples of I. Now he, she, it. He is tired. She is playing tennis. Remove the chair. It is blocking the door. Now it here is chair. जहाँ पे it है ना वो chair के बारे में बात हो रही है, इसलिए it is blocking the door. So here all these are singular subjects. Please remember singular nouns. मैंने आपको जब singular plural nouns का हमारा सबसे चैप्टर नंबर 2 था, ओके, इन द फर्स्ट टर्मिनल, तब भी हमें अच्छे से याद है कि जो सिंगुलर होते हैं उसके लिए एम और इज ज़्यादा है यूज होता है टू बी का, और जो प्लूरल होते हैं उसके लिए आर यूज होता है, बट फॉर प्रेजेंट टेंस। फॉर पास्ट टेंस सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस और हम कहेंगे सब्जेक्ट के लिए यूज होता है वॉज, ओनली एंड ओनली वॉज, WAS। एंड फॉर प्लूरल फॉर्म्स वी यूज WERE, वेर, WERE। इट विल कम हियर, ओके, नो प्रॉब्लम, इट विल come here only because both the tables are very very important for that subject verb agreement. So here she is playing the tennis, remove the chair, it is blocking the door. Now for all the plural subjects, now you, they and we, means you are a student. Here I am talking about you are a student as a first person singular, second person singular also and second person plural also. मैं दोनों में से उसमें यूज कर सकता हूँ, तो ये जो you है वो दोनों में आता है, ओके, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए। प्लीज रिमेंबर दैट वन, ओके। दे आर गोइंग टू द पार्क, वी आर लिविंग फॉर भोपाल। सो हियर यू, दे एंड वी आर प्लूरल नाउन्स, प्रोनाउंस, और वी कैन से हियर प्रोनाउंस बट प्लूरल सब्जेक्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस। सो वी विल यूज आर ऑफ द टू बीज फॉर्म। क्लियर ऑफ द फर्स्ट टेबल, ओके। फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक आई, ही, शी, इट, आई, ही, सी, इट, फॉर आई एम इज यूज, ही, सी, इट के लिए इज यूज होता है सिंगुलर में, प्रेजेंट टेंस में। प्लूरल फॉर्म में, सारे प्लूरल फॉर्म में यू, दे, वी के साथ आर यूज होता है बट इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट फॉर्म में, ओके। नाउ गोइंग फॉरवर्ड फॉर डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस, वी यूज हैज विद सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। नाउ वी यूज हैज विद सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस, बट हैज के लिए हमें सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर ही यूज करते हैं। प्लीज रिमेंबर, यहाँ टेक्स्ट बुक में थोड़ी क्लैरिफिकेशन नहीं दी, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर सिंगुलर नाउन्स प्रोनाउंस तो आई भी है, तो आई हैज, यू भी है, यू हैज, नो 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 नो, ओके। प्लीज रिमेंबर हियर लिटिल बिट कंफ्यूजन दैट द टेक्स्ट बुक कंटेंट इज नॉट लिटिल बिट क्लियर अबाउट दैट वेयर टू यूज हैज। हैज इज यूज्ड फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स और वी कैन से थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस। क्लियर? Has is used or has, we can use has for the third person singular subjects or third person singular pronouns or nouns also, no problem. So he, she and it and have with plural nouns, okay. So has is used with he, she and it only, okay. He, she and it, not all singular nouns and pronouns. All singular means I also is there and you is also there. So I or you में has use नहीं होता है, please remember. सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट में ही हैज यूज होता है। बाकी सारे सब्जेक्ट में, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर के छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट में हैव यूज होता है। आई हैव, वी हैव, यू हैव, you have and they have. Clear? I will repeat. I have, we have, you have and they have. ये मैंने सारे सब्जेक्ट्स और मैं कहूँगा कि प्रोनाउंस बोल दिया जिसमें हैव यूज होता है, और हैज़ यूज होता है सिर्फ 3, मतलब कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्रोनाउंस और नाउंस होते हैं वहाँ पे ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़. आई विल रिपीट. ही हैज़, शी हैज़ and it has. Now if you have confusion, that's if sir he की जगह पे आपका नाम हो तो प्रीतेश, then what will come? Obviously प्रीतेश is also the third person singular subject. Sanjay third person singular subject. India third person singular subject. So India has, Pritesh has, Sanjay has, Sweetie has. Okay, no problem at all. So we have to take that is in mind that third person singular subjects are, we can say the variety of these subjects and this vastness is very very wide. ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत होते हैं, उनके एग्जांपल्स बहुत होते हैं. ओके, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट.
थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में हर जगह पे आपको बहुत ही केयरफुली यूज करना होता है, क्योंकि टेंसेस में अगर देखें प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम वर्ब के पीछे एस ईएस लगाएंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है या दूसरा कुछ टेंसेस है तो उसके पीछे हैज लगाएंगे, हैज, ओके, HAS, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो, ओके। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर के लिए, और इंटरोगेटिव जो हम कहते हैं वो, या नेगेटिव क्वेश्चंस के लिए हम, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम डज यूज करेंगे। सो दैट इज ऑल्सो थर्ड पर्सन सिंगुलर के हमें थोड़ा अच्छे से उनको हम कहेंगे कि ट्रीट करते हैं हर जगह पे, ओके। सो फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सो हियर ही हैज अ हेडेक, दे हैव अ न्यू कार, आई हैव बॉट सम एप्पल्स, ओके। देखिए आई है ना वो सिंगुलर प्रोनाउंस है, ओके। तो यहाँ पे लिखा कि विथ हैज इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस, बट ही शी एंड इट ओनली, नॉट ऑल। सो आई हैव, you have read this book. So this is all about where to use has, where to use have. फिर से कह रहा हूँ, हैज यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए, नाउन्स के लिए और सब्जेक्ट्स के लिए। दे है, वो है, ही हैज, सी हैज एंड इट हैज। जबकि हैव यूज होता है बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, नाउन्स में और प्रोनाउंस में, बाकी सारे, जैसे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, आई हैव, यू हैव, दे हैव, फर्स्ट पर्सन के सारे हम कहेंगे कि सिंगुलर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के प्लूरल में। अब सेकंड पर्सन के प्लूरल, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में वी हैव एंड यू हैव, तो आई हैव, वी हैव, यू हैव एंड दे हैव। ये जो पूरा टेबल है हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का, उसके ऊपर का है। ये टेबल आपको आगे भी दिया था हमारे जो चैप्टर से तब भी, ओके। और अभी भी हमें रिपीट कर ही रहा हूं। नाउ इज, एम, आर, हैज एंड हैव आर यूज्ड विथ नाउन्स और प्रोनाउंस इन द प्रेजेंट टेंस। ये मैंने आपको जस्ट 5 मिनट्स पहले अभी डिक्लेयर किया और हमने डिस्कस किया कि हैव और हैज है वो भी प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है, और जब उसके जगह पे पास्ट टेंस हो तो यस बेसिकली हैड ही यूज होता है, हैड। अगर पास्ट टेंस है तो सबके लिए हैड यूज होता है, तो फिर वहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब नहीं होता है। बट अगर सब्जेक्ट्स प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर हैं थर्ड पर्सन, तो हैज यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के, बाकी सबके लिए हैव। बट इज, एम, आर, ओके, यस, इज, एम, आर, हैज एंड हैव आर यूज्ड विद द नाउन्स और प्रोनाउंस इन द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हो तो वो नाउन्स प्रोनाउंस के साथ यूज होता है, वो भी सिंगुलर, ओके। बट इज, एम फॉर सिंगुलर, आर फॉर प्लूरल, हैज फॉर सिंगुलर एंड हैव फॉर प्लूरल, ओके। बट आई हैव एंड यू हैव ये दोनों एक्सेप्शन है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए। यू आर में आता है और हम कहेंगे कि यू हैव भी आता है और आई हैव भी आता है, तो थोड़ा एक्सेप्शन है जो हमें याद रखना है। was and where are used with the nouns and pronouns in the past tense। अब जो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है एम, इज, आर, हैज, हैव, तो उसी जगह पे was, where यूज होता है पास्ट टेंस में, ये टू बी के फॉर्म है। अब अगर हैव और हैज की जगह पे पास्ट फॉर्म में क्या यूज होता है यहाँ पे नहीं लिखा है, तो प्लीज रिमेंबर दैट इन पास्ट टेंस, ओके, हैज इज ऑल्सो यूज एंड हैड इज ऑल्सो यूज, बट हैज एंड हैव दैट आर ऑल्सो दैट वन। Just so please remember was and where are used with the nouns and pronouns in the past tense। जैसे कि am, is, are यूज होते थे प्रेजेंट टेंस के लिए, वैसे ही उसके सामने was, where यूज होता है पास्ट टेंस के लिए। am और is का हो जाता है was और are का हो जाता है where, W, E और E। We use was and has with singular nouns and pronouns। Yes, I, he, she and it। लेकिन आई के साथ कभी हैज यूज नहीं होता है। आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि आई के साथ कभी हैज यूज नहीं होता है, आई हैव ही आता है, ओके। या फिर पास्ट के लिए परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के लिए हैड आता है, आई हैड, ओके। सारे पास्ट परफेक्ट के लिए हैड ही आता है, बट हैज यूज होता है वॉज के साथ अगर सिंगुलर पर्सन है तो स्पेशली मैं बोल रहा हूँ वो सिंगुलर होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। हैज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही यूज होता है, ओके। प्लीज रिमेंबर दैट वन ओनली। We have also learned this one previous also, so that is the main thing। And where and have with plural nouns and pronouns you, they, we। अब जो where है WERE उसके साथ have यूज होता है प्लूरल नाउन्स प्रोनाउंस या सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि you have, they have, we have,
Okay, you are, they are, we are. Very simple. Here were. Okay, you were, they were, we were. For singular subjects, I will use was. I was. Okay, I के साथ हम नहीं कहेंगे कि has आएगा. Okay, please remember. Okay, so I was. He was, she was, it was. Okay, then he has, she has, and it has. Okay, please remember. So I was looking for my book. ईशान हैज़ अ कोल्ड सिंस लास्ट नाइट. हैज़ अ कोल्ड. ओके, पास की बात हो रही है. लास्ट नाइट जो कुछ वर्ड्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स में, उससे पता चलता है कि जो टेंस है वो हमारा प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है. ओके, देन शी वॉज लेट फॉर क्लास. शी वॉज लेट फॉर क्लास. द कैट हैज़ रन अवे. द कैट हैज़ रन अवे. सो हियर फॉर द कैट इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर. इट कैटेगरी में आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे हैज़ यूज हुआ है. इसके ऊपर हमारी पूरी एक एक्सरसाइज है जो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कंप्लीट करेंगे, समझने की ट्राई करेंगे. ओके, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में जहाँ पे भी सारे दूसरे जो सब्जेक्ट्स है नाउन्स प्रोनाउंस में हैव यूज होता है, वहीं पे थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज़ आता है. ओके, देन वी हैव टू कन्वर्ट दैट वन ओनली. So this is all about our singular subjects, where to use was, where and where to use have and has. ये थोड़ा जो दोनों टेबल है वो दोनों मिक्स में है, जबकि हम उसे सेपरेट करेंगे तो पता चलेगा कि ही शी इट के साथ was आता है, आई के साथ भी was आता है, लेकिन ही शी इट के साथ सिर्फ has आता है, आई के साथ has नहीं आता है. ओके, दैट इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस टेबल इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस फर्स्ट रो ऑफ दिस टेबल. द सेकंड वन, yes, plural form of that all the we can say the subjects or noun pronouns you, they and we will use were. where, you were, they were, we were. उसके साथ हम दूसरा जो यूज करते हैं वो है जो टू बी के फॉर्म का दूसरा जो हम हेल्पिंग वर्ब में मॉडल ऑक्सिलरीज में आता है वो है हैव उसमें से आता है. you have, they have, we have. ओके, हाँ, कभी कभी सेंटेंस में हैव या हैज जो है एज अ मेन वर्ब एक्ट करते हैं, तो एज अ मेन वर्ब भी यूज होते हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ हेल्पिंग वर्ब. सो यू वेर बाइंग वेजिटेबल्स यस्टरडे. कल आप वेजिटेबल्स खरीद रहे थे. दे हैव सोल्ड देयर कार. ओके, दे तो वो हमें प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है. रिया एंड राज वेर गोइंग टू स्कूल. नाउ रिया और राज दोनों सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे कंजक्शन एंड से अगर ज्वाइन करते हैं तो वो प्लूरल माना जाता है, जैसे हमने पहले आगे देख लिया है चैप्टर नंबर में सिंगुलर सब्जेक्ट नाउन्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट नाउन्स में. ओके, सो रिया एंड राज वेर गोइंग टू स्कूल. सो हियर वी विल टेक रिया एंड राज एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, एज द प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड नाउन्स. सो वी हैव लिव्ड हियर फॉर 9 years. We have lived here for 9 years. Here we as the plural form, and that's why we will take have, not has. Has सिर्फ यूज होता है, आपको वापस याद रखना है. 10 बार अगर मैं बोलूँ तब भी याद रखना है. Has is used only and only in third person singular nouns, pronouns or subjects. Third person singular noun, pronouns or subjects. Please remember that is हैज़ वहीं पे यूज़ होता है, कहीं और हैज़ यूज करने की जरूरत है ही नहीं. बाकी सारी जगह पे हैव ही यूज़ होता है, अगर वो सिंपल पास्ट हो या सिंपल प्रेजेंट टेंस हो. अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड हो जाता है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, परफेक्ट टेंसेस के लिए हैड हो जाता है. हैज़ या हैव का पास्ट फॉर्म हो जाता है हैड. वो अभी हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बट वो हमारे टेंसेस में आ चुका है. पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो हैड यूज होता है, या फिर परफेक्ट टेंस हो तो हम कहेंगे कि हैड यूज होता है. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट अवर, दैट इज समथिंग लेफ्ट फॉर दैट वन. वी एड एन एस टू द बेस वर्ब विद सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस ही, शी एंड इट. अब यहाँ पे भी फिर से एक थोड़ा सा मैं कहूँगा कम्युनिकेशन वो रहना का कि हम एड एस करते हैं तभी जब टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस हो. मैंने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था तभी कहा था कि हम एस ई एस और आई एस फॉर्म यूज करते हैं, जिसे V4 फॉर्म कहते हैं, तभी जब सेंटेंस, प्लीज रिमेंबर, जब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तभी. ओके, सो प्लीज रिमेंबर, हम जो नाउन्स प्रोनाउंस और सब्जेक्ट्स होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके पीछे ही एस ई एस और आई एस वर्ब फॉर्म्स यूज करते हैं. वो है ही, शी और इट कैटेगरी. Okay, please remember. We write the verb in its base form with the plural nouns and pronouns I, you, they, we. ये भी कॉमन है कि जब
सिंपल प्रेजेंट टेंस हो और प्लूरल फॉर्म हो, ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर के सिवा बाकी सारे फॉर्म में हम बेस फॉर्म ही यूज करते हैं। आई प्ले, यू, वुड यू लाइक, मिनी एंड टीना गो, दे टेक, तो ये सारे जो हैं वो हम कहेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा के सारे सब्जेक्ट्स और हम कहेंगे कि नाउन प्रोनाउंस हैं उन सब के साथ हम बेस फॉर्म यूज करेंगे। बट व्हेन condition is if the subject or we can if the sentence is in the present tense, please remember in the present tense, simple present tense, especially for s, es, is form. So ये जो दो पॉइंट्स थे वो तो हमने पहले भी डिस्कस ही किए थे कि आई एस, ई एस और आई एस फॉर्म कहाँ यूज करते हैं, अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, एंड सेकंड अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो ये दो कंडीशंस में मैच होनी चाहिए तभी, ओके। So this table is very important for the usage of was were and for the usage of has have, कहाँ किस सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है वो है। अब ये टेबल है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कि एम इज आर किस किस सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर प्लूरल के साथ क्या क्या यूज होता है, वो एम इज आर के लिए। सो दिस टू टेबल्स, स्पेशली दिस आर द थ्री टेबल्स, एम इज आर का प्रेजेंट के लिए, was were का पास्ट के लिए, और हैज और हैव का भी, ओके। जो तीन टेबल होते हैं बेसिकली यहाँ पे दोनों टेबल कंबाइन है इसलिए। So these three tables are very important for our understanding of subject verb agreement. अगर हमें समझना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो ये टेबल या फिर हम कहेंगे कि जो एग्जांपल्स मैंने अभी आपको सारे एक्सप्लेनेशन में दिए हैं वो समझने पड़ेंगे। Now students, this is all about the explanation part of the subject verb agreement chapter number 27. Now in the next session we are going to start the explanation of textual exercises, okay. Okay, there are, we can say 4 to 5 exercises of that, and we will take and we will have that kind of explanation in the next session, in next video. For that, until now, thank you, goodbye.